أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من قال نبيه آدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تلبسوا الحق بالباطل تعلمون. صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنگال کی سرزمین آسنسول کا علاقہ برنپور ایک وسیع اور عریض عیدگاہ میدان میں آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ بنا میں مختار دو عالم کانفرنس کے نام سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، آج کی اس مبارک بزم میں آپ اور ہم سب شریک ہیں. یہاں پر آج کی اس بزم کو سجانے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے احباب نے بہت محنت اور کاوشیں کی ہے، اور اس کا ثمرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اس وسیع اور عریض میدان کو پر کر دیا ہے ہماری عوام نے. آج کے یہ جلسے کی کامیابی ہے کہ مسجد رسول پر اس وقت علماء ذوی احترام تشریف فرما ہے. میں مسجد رسول پر تشریف فرما اپنے تمامی علماء ذوی احترام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ خالق کائنات ہمارے ان علماء اہل سنت کی عمر میں، علم کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ہی بانیان جلسہ بالخصوص ہمارے برادر عزیز محترم جعفر بھائی اور ان کے اعزاء اقارب، ان کے احباب، ان کے دوست اور جس قدر بھی متعلقین ہیں، اور جن جن لوگوں نے آج کی اس بزم کو سجانے اور سنوارنے میں بڑی محنت کاوشیں کی، دامے در میں سپا نے جس طرح سے تعاون کیا، حصہ لیا، سب کے لیے اجماعی طور پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہمارے نوجوانوں کے حوصلے کو قبول فرما، ان کے خدمات کو قبول فرما کر بروز قیامت، بروز حشر اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرما. اس سے قبل کہ میں اپنی تقریر کے آغاز پر آؤں، اپنے تقریر کا آغاز کروں، چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس پر بیان کروں، اس لیے کہ یہ ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ دار علماء ہیں، اور ذمہ دار علماء وہ جو ذمہ دار جماعت کے افراد ہیں. نعت پاک پڑھنا اور نعت پاک سننا ایک بہت ہی کار عظیم و بہترین عمل ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نعت پاک پڑھنا کس کی سنت ہے اور اس کو سننا کس کی سنت ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان ابن ثابت، جو رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ہے، فصاحت و بلاغت پر عبور رکھتے تھے، زبان کے دھنی تھے، عربی زبان پر عبور اور محاورات کا علم اور قبائل کی معلومات بہت وسیع تر تھی ان کی. بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان مرتبت میں، آپ کی شان اعلیٰ میں نعت کے چند اشعار کہے. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے نعت کہی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ نعت پڑھنا کتنا عظیم تارہ عظیم ہے، کتنا عظیم کام ہے، کتنی بہترین عبادت ہے،
تو عملی طور پر جس چیز کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ یہ تھا کہ حضور ممبر پہ بیٹھے تھے، جب حضرت حسان آئے تو سرکار ممبر اقدس سے زمین فرش پر تشریف لاتے، ممبر اقدس کو خالی فرما دیا اور حسان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا حسان ہمارے ممبر پہ تشریف رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا آقا نے بتایا کہ میری مدح خوانی جو کرتے ہیں اس کو اللہ کا رسول ممبر پہ بٹھا کے بلند کر دیا کرتا ہے، اور خود آقا فرش زمین پر تشریف فرما ہو کر نعت کو سماعت کرتے اور حضرت حسان ممبر رسول پر بیٹھ کر سرکار کی حمد و ثنا حضور کی تعریف بیان کرتے۔ تصور میں اگر آپ اس بزم میں جائیں، مسجد نبی کا سما ہے، ممبر نبی ہے، وہ مسجد نبی جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ دیگر دنیا کی مسجدوں میں ایک رکعت نماز پڑھنا، میری مسجد میں ایک رکعت 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آسانی سے یہ سمجھ لے کہ آپ نے اپنی مسجد میں ایک جمعہ پڑھا، ایک جمعے کا ثواب مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کی سعادت آپ کو میسر آئی، گویا 70 جمعے کا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے۔ یہ مسجد نبوی کی شان اور پر ایسا مقدس مقام دیکھیں کتنا مقدس، مدح رسول، نعت خوان رسول جس مقام پہ جلوہ گر ہے وہ ممبر رسول ہے، جس کو صحابہ چومتے ہیں اور اس کی گرد و غبار کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اور بزم کتنی مبارک ہے، پڑھنے والا صحابی رسول ہے اور نعت سننے والوں میں ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، ابو ابن جرہ ہے، حضرت طلحہ انصاری ہے، حضرت زبیر ابن عوام ہے، جلیل قدر صحابہ، جنتی صحابہ جس میں کا ہر فرد جنت میں جانا جس کا لازمی ہے، جو جنتی ہے، جنتیوں کی جماعت ہے، جنتی نعت پڑھ رہا ہے، اور ان تمام جنتیوں کا سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بزم میں جلوہ گر ہے، گویا شمع نبوت ہے اور سارے پروانے موجود ہے۔ ایسی عظیم بزم نہ کائنات نے اس سے پہلے کبھی دیکھی، نہ قیامت تک ایسی بزم دیکھی۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجملک من تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب فانک قد خلقت کما تشاء۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی کیا شان بیان کریں ہم، حضور آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں، کائنات میں آپ سے زیادہ حسین آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے آپ کے جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی شمع وہ ہے کہ جس میں دھواں نہیں، یہی شمع خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں، یہی گل خار سے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جس میں دھواں۔ آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا، کوئی عیب آپ میں ہے ہی نہیں، ہر شعر پہ سرکار تصدیق فرما رہے۔ اور پھر آخری شعر عقیدہ اہل سنت کی اتنی بہترین ترجمانی شعر حضرت حسان کہہ رہے ہیں، گویا یہ قول حضرت حسان کا ہے، حدیث موقوف ہے، مگر سرکار کا سکوت اس کو حدیث مرفوع قرار دے رہا ہے۔ اب یہ بات رسول کی ہو گئی، رسول نے تسلیم بھی کیا، قبول بھی کیا، تعریف بھی کی، داد بھی دی، وہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کائنات میں کوئی آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس کو اس کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔
हमारी पैदाइश ही तो रब तबारक व तआला ने हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी रंगत कैसी हो, चेहरा कैसा हो, नाक कैसी हो, तुम्हारे बाल कैसे हो, तुम्हारी जो है जिस्म की साख कैसी हो, किस कबीले में पैदा होना चाहते हो, किस खानदान में पैदा होना चाहते हो, कौन से वालिदैन तुम पसंद करते हो, नहीं पूछा गया। रब की मर्जी थी, जहां चाहा, जिस कबीले में चाहा, जिस खानदान में चाहा, जिस इलाके में चाहा, जिस रंग और रूप के साथ हमें पैदा करना उसने मकसूद फरमाया, उस रंग रूप के साथ हमें पैदा कर दिया। मगर रसूलुल्लाह की शान क्या है? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ए महबूब, जैसा तुम पैदा होना चाहते हो वैसा हम तुम्हें पैदा। और फिर हदीस के अल्फाज है कि जब शेर का सहाबा ने सुभान अल्लाह के नारे बुलंद, जबान पर मरहबा और सुभान अल्लाह था, सरकार तशरीफ फरमा है, हुजूर इतने खुश हुए कि खड़े हुए और अपनी चादर अक़दस हज़रत हस्सान को उड़ा, और चादर अक़दस हज़रत हस्सान को लेकर क्या दुआ की? हाथों को उठाया, कहा परवरदिगार हस्सान के मुंह को सलामत रख, हस्सान के दहन को सलामत रख। ऐ रब्बे कदीर, जिब्रील अमीन को हस्सान का मददगार बना दे कि वो मेरी नात का मदद उसमें जिब्रील करे। ये है नात पाक का मकाम, ये है नात पढ़ने का ढंग और सुनने का तरीका। मगर क्या हमारी बज़्म आजकल ऐसी रह गई है? क्या हमारी महफिलें उसी महफिल की तर्जुमान हैं? एक तरफ हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह जब नात खानी होती है तो तशरीफ लाते हैं, ये अकीदा है हमारा। हम इल्तिजा करते हैं, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, इस बज़्म में तशरीफ लाइए ताकि आपकी तशरीफ आवरी से बरकतें आ जाए और ये बज़्म क़यामत के दिन हमारे लिए मकबूलियत का सबब बन जाए। तस्वुर है कि रसूल मौजूद है और अंदाज क्या है? आंड हो गया तुम लोग। माइकल लाल को मैं चैलेंज करता हूं, कोई माइकल लाल बता दे कि हुजूर की बारगाह में जब नात पढ़ी जाती थी, नात खाओं में बहुत सारी फहरिस्त आती है, मुहद्दिसीन ने उन नात खानों के नाम लिखे हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, अरबी किताबें आपके बस की नहीं है तो कम अज कम मदारिजुन नबुव्वत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जुमा आ चुका है। इमाम कस्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए, इमाम ज़रकानी की शरहुल मवाहिब पढ़ लीजिए, इमाम जो है बुरहानुद्दीन हलवी की सीरतुल हल्बिया पढ़ लीजिए। यहां से वहां तक बेशुमार सीरत की किताबें, और जहां जिन सीरतों निगारों ने, जिन मुहद्दिसीन ने, जिन उलमा ने हुजूर की सीरतें लिखी, वहां हुजूर के उन असहाब का जिक्र किया कि हुजूर की बारगाह में नात कहने वाले कौन से सहाबी थे। उनमें हजरत हस्सान का नाम आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का नाम आता है, मौला कायनात अली मुर्तजा का नाम आता है, ज़ैद इब्न हारिस का नाम आता है। ये वो मद्दा खान रसूल है जो नबी की बारगाह में नात लिखते थे और हुजूर को सुनाते थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकते हो कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते? ये तमाशा क्या है? ये नाथखानी है कि भांडों की मजलिस है? उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नाथखा को तू नाद पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वज्द आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। नबी की नात पे इतने वज्द आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए, हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहे। ये तकाजा है मिंबर का, मैं बोलूंगा किसी को बुरा लगे, मेरी बला से जाए 2 रोटी ज्यादा था, कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। इस्लाह के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हो, पहले अपनी तो इस्लाह कर लो, तो हम क्या दूसरों को दावत देंगे जब हमारी अपने हाल बिगड़े हुए। आज मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं बदअकीदगी जाहिर करूं और बदअकीदों का जो है रद्द करूं, लेकिन जरा हम अपने गिरेबान में भी तो झांके कि भाई हम कहां तक दुरुस्त है और कहां तक सही है। एक नाथखा का मुझे ज़हन में जिक्र आ रहा है, नाथ कहते किसको है? मुन्नी बाई का मुजरा नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा मालूम नहीं, बस तकरार चल रही है और तवायफों पे जैसे सरों पे नोट निछावर की जाती है, नाटकों पे यूज क्या है ये? छिछोरे हो तुम लोग? अरे तुम मुअद्दब कौम हो, तुम महज़ब लोग हो,
तुम वो लोग हो कि इकबाल की जबान में सबक पढ़ शुजाअत का, अदालत का, सियासत का, अदल का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। दुनिया का इमाम बनने आए हो, सुभान अल्लाह। नचनिया बन के रह गए। क्या इमामत और क़यादत करोगे? फिर जलील ख्वार नहीं होंगे, जालिम तुम पे मुसल्लत नहीं होंगे। तुम नबी के नाम पे ढंडोरा करते हो, हौसलेबाजी करते हो। एक नाथखा का मैं नाम बताता हूं, कौन है? अब्दुर्रहमान इब्न जामी रहमतुल्लाह। जी जी, आशिक रसूल ये होते थे, आशिक रसूल ये होते थे नाथखा। हज के लिए निकले, जब निकले तो सरकार की बारगाह में एक नात के कुछ फारसी ने अशार दिया और इरादा किया कि रोज़े रसूल पर हाजिर होगा, सरकार की बारगाह में नात का अशार। जब मदीने की सरहद के बाहर काफिला रुका, सालार काफिला को बशारत होती है कि हमारे इस काफिले में एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, इलाका जाम से आया हुआ है, उसको मदीने में दाखिले की इजाजत नहीं है, उसको रोको। सालार काफिला ख्वाब से बेदार हुआ तो मुझे ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि इस काफिले के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, इलाका जाम का शहर है जो ईरान का इलाका है, वहां के रहने वाले थे, हेरात, वहां के इलाका जाम का रहने वाला शख्स है। कौन है तुम में से वो शख्स? हज़रत अब्दुर्रहमान आगे बढ़े, कहा मैं हूं। तो आपको इजाजत नहीं है, हुजूर की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप मदीने में दाखिल नहीं। लोगों ने देखा तो लानतान शुरू कर दी, बहुत बड़ा गुनाहगार पापी मालूम होता है, बहुत बड़ा खताकार है, इसलिए हुजूर की जानिब से उसको रोक दिया गया है। आप रोने लगे, रोते कहते या रसूलल्लाह आखिर मेरा कसूर क्या है कि इस गुलाम को हाजिर होने से रोका जा रहा है। मचलते हैं, सालार काफिला की खुशामद करते हैं, सालार काफिला कहता है कि नहीं, इजाजत नहीं है, हमें डर है कि अगर हमने आपको अपने साथ मदीने के अंदर दाखिल करके लेके गए, साथ में ले गए तो कहीं हम पर इकाब नाज़िल ना हो जाए। सालार काफिला ने इनकार कर दिया। बहरहाल काफिले के ऊपर से आपने एक तरह से मामला तय किया और कुछ दिनारों का उसको लालच दिया, कहा कि जो तुम्हारे सामान का संदूक है, एक संदूक में मुझे छुपा दो, उस संदूक को ऊँट पर बार कर दो, ऊँट पर लाद दो, कोई मुझे देखेगा नहीं, इस तरीके से मैं मदीने में दाखिल हो जाऊँ। वो शख्स रुपये की लालच में आ गया, उसने रुपये लिए, लकड़े का बड़ा सा संदूक था, उसमें हज़रत जामी को संदूक पे रखा, संदूक बंद कर, संदूक को ऊँट पे लाद दिया गया। सुबह जैसी हुई काफिला निकला, एक तेज हवा, गर्द गुबार, तूफान के ऊंटों ने और जानवरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा मदीने के जाने से तूफान उठा कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सालार काफिला ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे नस्ब कर दो, जब तक तूफान न थमे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल रुक गए, रात का वक्त आया, फिर ख्वाब में बशारत होती है और फिर कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान संदूक में बंद है, फुला संदूक को खोलो, उसके अंदर छुप कर आ रहा है, पोशीदा। संदूक खोला गया तो अब्दुर्रहमान कहता, अब्दुर्रहमान नहीं थे, इश्क मोहब्बत का एक पैकर था जो संदूक में कैद था और बाहर आजाद हुआ। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा पापी है, देखो छुप के जाना चाहता है, तब भी रोका गया। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते, पूरी रात रोते, या रसूलल्लाह मुझ गुलाम को क्यों रोका जा रहा है, सरकार मेरी क्या खता, मुझे माफ। इतना रोए कि रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इस सालार काफिलों को बशारत होती है, सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुर्रहमान को आने दिया जाए। अर्ज़ के या रसूलल्लाह पहले क्यों रोका जा रहा था? फरमाया इसलिए कि अब्दुर्रहमान ने हमारी मोहब्बत में एक ऐसी नात लिख कर लाई है कि अगर वो नात हमारी कब्र के पास आके पड़ता तो उस नात की कैफियत का ये आलम होता कि हमें अपनी कब्र मुबारक से बाहर जाहिर होना पड़ता, इसलिए रोका जा रहा था। मगर अब्दुर्रहमान ने इतना रोया कि हमें उस पर रहम आ गया, लिहाजा अब्दुर्रहमान को इजाजत दी गई। और जब इजाजत, तब लोगों ने जाना कि अब्दुर्रहमान किस आशिक सादिक का नाम है, किस आशिक रसूल का नाम है, और लोगों ने दस्तबोसियां शुरू कर दिया। आपने कहा मैं गुनाहगार हूं, मेरे हाथ को न चूमो, मुझे तो रसूल की बारगाह में जाने दो, काश ये जिंदगी रसूल की कदमों पर कुर्बान हो जाए। और आप बिलखते हुए, रोते और तड़पते हुए रोज़े रसूल पर जाते, और वो जब नात के अशार पढ़ते हैं, उलमा फरमाते कि वो असर हुआ, सारी
महफिल में वजदारी हुआ, रोज़े रसूल को जुम्बुश हुई, कब्र मुबारक शक होती है, बनफ्स नफी सरकार तशरीफ लाते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न जामी को उठाते हैं, पेशानी को सरकार पोसा देते, अब्दुर्रहमान कदमों में गिर जाते, कहते अब्दुर्रहमान मेरा ये नात कहना हमारी बारगाह में कबूल कर लिया और तुझे अब हमारी बारगाह से बशारत दी जाती है, अब्दुर्रहमान अब जाओ, अगले साल फिर लौट। हज़रत अब्दुर्रहमान जब तक कयाम रहा मदीने में रात चले गए, जब आखिरी सलाम के लिए आए फिर वही आवाज है, अब्दुर्रहमान जाओ, अगले साल फिर लौट। अगले साल फिर आए, फिर सलाम अर्ज किया, फिर जवाब आया, फिर रुखसत के टाइम सलाम करते, फिर जवाब आता है अब्दुर्रहमान जाओ, फिर आओ। 2 बार 3 बार, बाद उलमा ने लिखा कि 33 मरतबा मदीना मुनव्वरा आना और जाना रहा, और जब 33वें बार आए सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, और फिर ये नहीं कहा गया कि अब्दुर्रहमान जाओ और लौट कर आओ, फिर दूसरी बार सलाम करते अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फिर सरकार कहते वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। अगर ये जवाब नहीं आता कि जाओ और लौट कर आओ तो खुद ही अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ लौट कर आओ, सरकार इस बार इरशाद गिरामी नहीं हुआ, आका ने फरमाया अब्दुर्रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी ज़ियारत है, अब मैदान हश्र में हमारी मुलाकात है। ये आशिक होते थे, किस अंदाज में नातें पढ़ी होंगी, किस अंदाज में आला हजरत ने नात पढ़ी होंगी, तो किस अंदाज में आजीजी की होंगी। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। वो कुत्ते नहीं है, वो लफ्ज है कित्ते, क्या करते आप, वो क्या लफ्ज है, कित्ते, कितने की तस्दीर है कित्ते, कुत्ते पढ़ते हैं लोग उसको, कुत्ते नहीं हो कित्ते, तुझसे कितने हजार फिर, मेरे जैसे लोग कई सैकड़ों आशिक फिर रहे हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह, जब तक आपका बनफ्से नफीस ज़ियारत ना कर लूं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप में तो बहुत बार ज़ियारत, दिन गुजरते रहे मगर ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ, तो शिकायत के अंदाज में फिर ये नात के साबित है, वो सुए लालाजार तेरे दिन है बहार फिरते, कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार थे। ये नात के अशार लिखने के बाद नींद लगी, किसी बेदार करने वाले ने बेदार किया, अहमद रजा उठो सरकार तशरीफ फरमा, देखा कब्र मुबारक शक हुई, सरकार बनफ्से नफीस सामने। तो ये वो आशिक थे नात खां कि जिनके इश्क की बुनियाद पर इन्हें तो ज़ियारत हुई, इनके सबब और लोगों को भी सरकार की ज़ियारत। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं ऐसे आशिकों की एक फहरिस्त है मेरे पास जिनकी मैं नात के कलामों का अंदाज और हुजूर की बारगाह से उनको क्या शर्फ कबूलियत मिली पर एक सिलसिलेवार में गुफ्तगू करता है। लेकिन बताने का मकसद यह है कि अपनी इस्लाह कीजिए, नए नए तमाशे मत कीजिए कि कहने वालों को आपका मजाक उड़ाने का मौका मिले, आपको तस्दीक करने का मौका मिले। नात रसूल अदब के साथ सुनी जाती है, अदब के साथ पढ़ी जाती है, ये उसके तरीके नहीं है। ये आज पहला जलसा मैंने देखा, इससे पहले कई जलसे मैंने अटेंड किए, यहाँ भी बरनपुर इससे पहले आया, लेकिन इससे पहले मैंने कभी मोबाइल वाला शो नहीं देखा। ये भाई ब्रेक डांस करते हैं ना, वो तो फिल्म एक्टर, ये वहां तमाशे चलते हैं। दीनी मस्जिदों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरी शरई जिम्मेदारी थी कि ये मेरे सामने हुआ तो उसकी मैं तरदीद करूं, ताकि कल कोई कहने वाला ये नहीं कहे कि फारूक रज़वी बैठा था उसके सामने सब तमाशे हो रहे। मैंने अपना फरीज़ा अदा किया, मानना नहीं मानना आपके जिम्मे है, मानोगे आपका फायदा, नहीं मानोगे कल आपको बारगाह रसूल में जवाब। तो मोहब्बत के साथ नात पढ़िए, इश्क के साथ, अदब के साथ नात पढ़िए और अदब के साथ सुनिए। तसव्वुर कीजिए अगर इस मजलूम में आला हजरत बैठी हो और इस तरीके से आप ना सुन रहे हो, तो इस तरह से पढ़ी जा रही है, आला हजरत दोबारा खुदा की कसम इतने जूते मारते कि सर के बाल झड़ जाते। आला हजरत उस आशिक सादिक का नाम है कि आला हजरत फरमाते रसूल का अदब तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर फरमाते बचपन में एक बार जब मुझे घर वालों ने बता दिया, मेरे वालिद ने बता दिया कि इस सिंध गौसे आजम का रोजा है, फिर फकीर ने ताउम्र तक उस तरफ कभी कदम रख के लेटा और सोया नहीं। जो बारगाह गौसे आजम का इतना अदब करे, महफिल नात कैसी होती है ज्यादा। इसलिए परहेज कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको। इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों पर 3 बड़ी मुसीबत है, 3 फितने हमारे साथ बहुत ज्यादा।
उरूज पर है। फितने तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मुसीबतें मुसलमानों पे छोटी छोटी बहुत सारी है, लेकिन बड़ी 3 मुसीबतें अगर आप उन सारी छोटी मुसीबतों को नजरअंदाज कर दीजिए तो 3 फितने वो है जिसने मुसलमानों को अपने घेरे में ले रखा है और मुसलमान इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। उसमें एक दुश्मनाने इस्लाम का फितना, जिसकी भरपूर कोशिश है कि हमें इस्लाम से हटा के मुर्तद इर्तिदाद की तरफ लाया जाए, और इसका जरिया उन्होंने हमारे यहाँ की कमजोर कड़ी हमारी बहनों को चुना है। वो जानते हैं कि अगर एक मुसलमान की किसी एक लड़की को अगर हमने अपनी तरफ खींच लाया किसी भी तरीके से, एक नस्ल को हम पूरी तरह खराब कर, एक ये बहुत बड़ा फितरा है। आज इस कदर हम मुसलमानों को प्रेशर और इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुसलमान अपने तखस्सुस को, अपने इस्लाम की शनाख्त को, अपनी इस्लाम की निशानियों को दिन ब दिन छूटता है। कई नमाजों को लेकर तकलीफें दी जाती है, कई दाढ़ी को लेकर फितना खड़ा किया जाता है, कई लिबास को लेकर मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को दबाने और सताने की कोशिश की जा रही है। एक गैर मुस्लिमों का फितना है जो इस्लाम को फना करना चाहता है और अहले इस्लाम को इस्लाम से हटाना चाहता है। अब ये तो खुले दुश्मन है हमारे, इन दुश्मनों को हम आसानी से पहचान भी लेते। अगर कोई इस तरह का दुश्मन आता है और इस्लाम के खिलाफ कुछ कहता है तो हम उसके हुलिये से, उसके अंदाज से, उसकी मजहबी शनाख्त से हम पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है। ये बारूद मत उड़ाइए, आ रहा था और फिर ये अभी 1 मिनट 2 मिनट ही नहीं गुजरे। मैं भी यही चीज समझा रहा था कि भाई को मजहबी जलसों की तरह देखिए, गैरों की नकल मत कीजिए आप। सुन्नत मसलके आला हजरत की बहुत तंगदामनी है। वजह यह है कि मैं बहुत मुख्तसर खिताब करके ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब श्रीलंका दामद बरकातुहुल आलिया 4 बजे उनकी ट्रेन है। तो हजरत को 4 बजे से पहले 4 बजे ट्रेन पकड़ना है तो कम से कम 3:30 बजे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आधा घंटा कम से कम तैयारी और सूटकेस वगैरह लेना और फिर स्टेशन जाना उससे लगता है। तो वक्त बिल्कुल ज़्यादा है नहीं, 12:30 बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने देर में इनकी और मुझे अपनी तकरीरों को समेटे। तो अब अगर उसमें आप थोड़ा सा इस तरह से डिस्टर्बेंस करोगे तो मसला होता है। आप बराए करम तशरीफ रखें, संजीदगी के साथ गुफ्तगू करें, ज्यादा वक्त में आपका नहीं लूंगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि 3 फितने इस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा शक्ति। एक दुश्मनाने इस्लाम का फितना जो दिन ब दिन नित नए तरीके सोचता रहता है कि मुसलमानों को कैसे कमजोर किया जाए, माली एतबार से उनकी मजहबी शनाख्त को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उन पर प्रेशर कायम किया जाए और किस तरह उनको हिंदुस्तान में दबा कर रखा जाए और इस हाल तक उनको पहुंचा दिया जाए कि वो अपनी मजहबी शनाख्त का खुलकर इजहार भी ना करते। ये एक तवील गुफ्तगू है, सियासी हालात किस तरह के हैं वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अब दूसरा जो एक फितना है मुसलमानों पर इस वक्त, वो है बदअकीदगी का फितना। ये एक हमारे अंदरूनी दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो है दुश्मनान इस्लाम जो खुला दुश्मन है, जिसको हम समझ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, उसकी साजिशों को बहुत हद तक समझ लेते हैं। लेकिन एक हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बीच में होता है, हुलिया भी हमारी तरीके का होता है, कपड़े लिबास भी हमारी तरीके के पहनता है, उसके नाम भी हमारी तरीके होता है, तहजीब तमद्दुन रहन सहन सब कुछ हमारा, इबादत भी करता हुआ नजर आएगा, नमाज भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारी मसाजिदों में भी नजर आएगा, ईदगाहों में भी नजर आएगा। गर्ज के उसको देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा है या दुश्मन है हमारा। लेकिन मसला कहां खड़ा हो जाता है
کہ اہل فہم حضرات جو ہے ہماری جماعت میں، یہ اہل ادراک ہے جو ادراک کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو انسانوں کو پہچاننے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کے گفتگو سے، ان کے عقائد اور نظریات سے ان کو بھاپ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت ہمارے قوم میں ہر فرد میں نہیں ہوتی۔ مخصوص ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی صلاحیت اللہ ان کو نوازتا ہے، اور یہ صلاحیتوں سے جو بہرہ بر ہوتے ہیں وہ ہماری جماعت کے علماء اہل سنت۔ اور تیسرا پھر ایک اور فتنہ ہے، وہ ہے مذبذبیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، پلپلا پن، ادھر بھی اور ادھر بھی طے نہیں کر پاتے ہیں بیچارے کہ کدھر جائیں، یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے ان کو، یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، دونوں گروہ میں امتیاز نہیں کر پاتے کہ کون حق ہے اور کون باطل۔ اور ایسے لوگوں سے اکثر جب ملاقات ہوتی ہے اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن یہ در حقیقت ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا اس لیے دشمن ہے کہ یہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا دشمن ہے۔ تو ہماری قوم اس بات کو ماننے سے، اس تنبیہ کو قبول کرنے سے، اس نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیتی، کہتی کیسی بات کر رہے بھائی، نماز تو پڑھتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، نام ان کے بھی مسلمانوں کی طرح ہے، داڑیاں ان کی بھی ہے، لباس بھی ان کے مسلمانوں کی طرح ہے، ہماری طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری طرح سارے معاملات ہیں، ہم کیسے سمجھ لیں کہ بھائی یہ غلط ہے؟ اور یہ صلح کلیات، یہ تذبذب، یہ ادھر بھی اور ادھر بھی ہے، یہ جو معاملہ ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بدعقیدگی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے، ہدایت نصیب میں ہے، وقت پر ہدایت مل گئی، وقت پر شعور اور سمجھداری آ گئی تو بچ جاتا ہے انسان، ورنہ پھر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اس صلح کلیت کے فتنے سے باز نہ رکھا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صلح کلیت کے بعد نعوذ باللہ پھر وہ گمراہوں میں ہوتا ہے، گمراہوں کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور کفر کے بعد اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا اپنے آپ کو اس وقت بھی مسلمان۔ اب کیسے جانے ہم بھائی کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا نہیں، اس کو کیسے پہچانے، کیسے سمجھے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اس کی خبر دی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ یہ حدیث پاک اتنی مستند ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا محدث گزرا ہو جس نے اپنی کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہ کی۔ حتیٰ کہ میں نے تحقیق کی تو میں نے پایا کہ تقریباً 18 اجلہ صحابہ اکرام ہیں جو اس حدیث کے راوی، اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوں گی۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین علی سبعین ملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں لوگوں، قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری، رسول اللہ سے پہلی کی امت بنی اسرائیل گزری جس سے بہت سارے انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے۔ فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، اور اے لوگوں آگاہ ہو، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی، وہ 72 فرقوں میں بٹے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جماعت کی، جنتیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم ان کو پہچانے کہ جنتی ہے؟ تو آقا نے جو پہچان بتائی، اس زمانے میں اس پہچان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کا جنتیوں کی پہچان یہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ اب یہ ایک پیمانہ ہمیں مل گیا کہ اگر کوئی ہمارے حلیے میں آ رہا ہے، سر پہ ٹوپی اور داڑھی لگی ہوئی ہے، جسم پہ اسلامی لباس سجا ہوا ہے، وہ اس وقت تک ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس کی بولی، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کا۔
अगर उसका अकीदा साहबा रसूल के अकीदे के मुताबिक है, हमारा है, वरना फिर वो उन 72 फिरकों में से किसी न किसी एक फिरके से जरूर ताल्लुक है। और ऐसे शख्स से हमें अपने ईमान को और अपने आप को बचाने की जरूरत है। आज जो मौजूदा जमातें हैं, कुछ नामजद है, मुख्तलिफ नामों से वो अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं, मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हम अहले सुन्नत अपने आप को अहले सुन्नत है, हमारा दावा है, और हमारा दावा ही नहीं, उसका सबूत है कि हम वही हैं जो 1400 साल से चले आ रहे हैं। हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा अपने सहाबा को दिया, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबे ताबईन को, और तबे ताबईन से अइम्मा से होते हुए हम तक वो अकीदा हो। और आज जो कुछ जमातें अलग अलग नामों से नामजद है, हम उनको अहले सुन्नत इसलिए नहीं समझते कि हमने रसूलुल्लाह की उसी हदीस के पाक को कसौटी बनाया, मा अना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत। मैंने अर्ज किया कि 3 फितने हैं जो हमारे ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुलह का एक फितना, एक जो है बदअकीदगी का फितना, और एक दुश्मनान इस्लाम जो खुले तौर पर है बदअकीदा की कोशिश होती है कि हमारे ईमान को कैसे बर्बाद करे। तो हमारे दरमियान, हमारे बीच रहकर कुछ ऐसे अकायद और नजरियात को दाखिल कर दिया गया, या दाखिल करने की कोशिश की जाती है कि जो सहाबा रसूल का अकीदा हर किसी। इस ताल्लुक से तारीख इस्लाम में जो पहला फिरका बना था वो शिया फिरका, हमारे उलमा की मेहनतों का समरा था कि इस फितने को, इस फिरके की नजरियात और इसके बातिल अकायद का ऐसा किला कुमा किया, सदियों तक ये फितना दफन रहा, दबा रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि अब कुछ सालों से ये फितना दोबारा हमें फिर नजर आया, और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है। आला हजरत की जबान में मैं अगर कहूं कि शैतान के हरबों में से सबसे शदीद तर हरबा यह है कि शहद के बहाने जहर पिला, और दवा के बहाने जो है जहर देता है। शहद यह है कि अहले बैत की मोहब्बत दिखाई जाती है, लेकिन जब अंदर झांको तो नजरियात अकायद के तौर नजर आते। अगर शिया फिरके की हम बात करें तो इतने बातिल नजरियात हैं कि जो खुदा की कसम न हरगिज़ सहाबा का अकीदा हो सकते हैं, न रसूल का अकीदा हो। मैं बहुत सारे अगर अकायद बताऊं तो रात छुट्टी पड़ जाएंगी, सिर्फ एक अकीदा बताऊंगा, प्रूफ में एक वीडियो दिखाऊंगा। फैसला आपको करना है कि जिनका ये अकीदा है तो क्या हम उनको सही कह सकते हैं? क्या हमारी सुलह कुल्ली वाली पॉलिसी सही है कि किसी को बुरा ना कहा जाए, ये भी सही, वो भी सही? एक अकीदा मैं ये बता रहा हूं कि आप सब जानते हैं कुरान अजीम कितने पारे हैं? 30 पारे। किस पर नाज़िल हुआ? सरकार। किताबी शक्ल में किसने जमा किया? सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करने वाली जात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अपने दौरे खिलाफत में चंद सहाबा की टीम तैयार करके उन्होंने किताबी शक्ल में कुरान को जमा किया। मशवरा हजरत उमर का था कि किताबी शक्ल में कुरान जमा कर दिया जाए, इसलिए कि हुफ्फाज इंतकाल करेंगे, जंगों में शहादत पा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब दुनिया के हुफ्फाज खत्म हो जाएंगे, कुरान का कोई याद करने वाला ना रहेगा। नतीजा ये होगा कि कुरान की बहुत सारी बातें जहनों से जो है निकल चुकी होंगी। लोग उस तालीमात से, कुरान की बातों से नावाकिफ होने की बुनियाद पर कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा जाए होगा। उसकी हिफाजत का तरीका यह है कि कुरान अजीम को मसहफ की शक्ल में, किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए। ये मशवरा साहबा ने पसंद किया, किताबी शक्ल में जमा हुआ, 30 पारों की शक्ल में जमा हुआ। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है, 1400 साल का अकीदा है कि जिस तरह अबू बकर ने जमा किया वही कुरान था, जैसा हुजूर पे नाजिल हुआ था, जैसी आयतें हुजूर ने पढ़ के तिलावत की थी, ना उसका जेर बदला है ना उसका जबर बदला। और उसके तहफ़्फ़ुज़ का यह आलम है कि आज भी अगर कोई हाफिज कुरान तरावी पढ़ता है, तरावी सुनाता है, या कोई नमाज में किरत करता है, या कोई तकरीर में आयत पढ़ता है, और आयत में अगर ज़ेर और ज़बर कभी गलती हो जाए, फर्क पड़ जाए, तो एक नहीं सैकड़ों टोकने वाले होते, सैकड़ों वाकिफ होते जो समझ लेते, जान लेते कि भाई पढ़ने वाले कारी से खुला जगह गलती हो गई है, यहाँ जेर था जबर से पढ़ लिया, जबर था जेर से पढ़ लिया। यानी इसकी हिफाजत का ये आलम है कि जेर और जबर भी उसका बदला नहीं जा सकता। लेकिन शिया वो बातिल फिरका है जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में हमारे दरमियान में दाखिल होना चाहता है।
जिन्होंने ये अकीदा बनाया माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह कि आज जो मौजूदा कुरान है ये कुरान महफूज है ही नहीं, ये तहरीर शुदा कुरान है। हजरत अबू बकर को अहले बैत से बहुत नफरत थी, लिहाजा उस नफरत की बुनियाद पे माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान का बहुत सारा वो हिस्सा जो अहले बैत की फजीलत में आया तो उसको कुरान से निकाल दिया और बाकायदा बाज़ाब्ता इसी किताबें इस फिरके में लिखी जो इस फिरके के, हमारे नजदीक तो उनकी कोई हैसियत नहीं, मगर इस फिरके के मोतबर मुस्तनद मोतमद उलमा कहलाते हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो कुलैनी है एक, उसूल काफी उन्होंने किताब लिखी। माज़अल्लाह उन किताब की निस्बत इमाम जाफर की तरफ की गई कि सारी रिवायत हमने इमाम जाफर हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर से नकल की, और सारी मनगढ़ंत रिवायतें इमाम जाफर के खाते में डाल के कहा गया कि साहब कुरान में इतने हजार आयतें थी, इतनी आयतें अबू बकर ने निकाल दी, इतनी हजार मौजूद, कुरान का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। मुल्ला बाकर मजलिसी इस तरह का एक मौलवी है, उसने हयातुल कुलूब नाम की किताब लिखी, उसमें जिक्र करता है कि सूरह अहले बैत एक मुकम्मल सूरत थी, अबू बकर ने पूरी सूरत को निकाल दिया। कुरान की आयतों में तहरीफ की, जहां जहां अली का नाम था वहां अली हटा के मुख्तलिफ जुमले लाए गए। एहदीना सिरातल अली, आयत यूती अल्लाह, ए अल्लाह हमें अली के रास्ते पर चला। अबू बकर ने लफ्ज अली हटाया और आयत को यूं कर दिया एहदीना सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम नहीं था वहां अली का। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये आयत अबू बकर ने बदली, आयत यूं थी फसलू अलीगिन ला तालमून, अली से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो, अली हटा के अहल जिक्र कर दिया। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कहा यहां पर मिन मिस्ली नहीं था, बल्कि यहां था मिन मिस्ली नहीं था, बल्कि था मिस्ल अली, अली के मिस्ल, जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल किया और साथ में अली की जैसा भेजा, इसकी मिस्ल कोई और अली हो तो ले आओ। वहां अली हटा के साहब वहां पे कुरान कर दिया उन्होंने, जबकि वहां जिक्र अली। इस तरह बहुत सारी आयतें बाज़ाब्ता उसूल काफी में लिखी है, ये किताब मेरे पास मौजूद है 6 जिल्दों में। हयातुल कुलूब मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये बातें लिखी गई है कि अबू बकर ने बदल दिया। फिर कहा गया कि जब अबू बकर बदल रहे थे तब सवाल होता है भाई अली क्या कर रहे थे उसका, भाई अली शेर मर्दा चाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो कुरान बदला जा रहा हो वो खामोश हुए। कहते हुआ ये कि हजरत अली ने कुरान तरतीब दिया, ओरिजिनल कुरान लिखा और उसी तरह कुरान लिखा जैसे हुजूर पर नाजिल हुआ था। ओरिजिनल सही कुरान लेकर अबू बकर की खिदमत में पहुंचकर कहा अबू बकर 2 महीने में मुसलसल कुरान लिखता रहा, 2 महीने की जो है मेहनत और मशक्कत के बाद मैं ये ओरिजिनल कुरान लाया हूं, जैसा रसूल पे नाजिल हुआ था, जैसा आका ने बताया था। तुमने कुरान में तहरीफ किया, तुमने कुरान की आयतों को बदल दिया, ये कुरान है ओरिजिनल, इसको रायज करो, इसके नुस्खों को बनाओ और इन नुस्खों को मुसलमानों में आम करो। तो हज़रत अबू बकर और उमर ने कहा हमारे लिए जो हमने कुरान लिखा यही काफी है। तो अली को जलाल आया और उस कुरान को लेकर आपने हवा में हाथ लहराया और हाथ लहरा के कहा देख रहे हो ऐ लोगो, या अय्युहन्नास से लोगो, इस कुरान को देख रहे हो, देख लो देख लो, कयामत तक तुम इस कुरान को देख ना सकोगे। आखिरी बार इस ओरिजिनल असली कुरान का दीदार कर लो। फिर उसके बाद हजरत अली आए, अपने बेटे हसन को कुरान दिया, कहा बेटा हसन ये कुरान अपने वसी के अलावा, अपने वारिस के अलावा किसी को ना देना, किसी को ना दिखाना। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, इमाम हुसैन ने वही वसीयत की फिर अपने बाद वालों को, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर को दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम मूसा कासिम को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम नकी अली को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम अली सकी को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम जवाद को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम हसन अस्करी को दे दिया, उन्होंने इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी लेकर वो कुरान लेकर गायब हो गए, कयामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आए। तो आपके और हमारे घर में जो कुरान है वो कौन सा है? डुप्लीकेट। इनका ये अकीदा हो, क्या हमारी सुलह कुल्लियत इतनी नीच हो गई है, इतनी गिर गई है कि हम इनको भी कहे कि ये भी सही है, किसी को बुरा ना कहो। जो हमारी कुरान, हमारी किताब, अल्लाह की किताबों को ही सही मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहेंगे फारूक साहब हम कैसे यकीन कर ले, आपने नाम लिए किताबों के, इन किताबों के तो नाम भी नहीं सुने हमने, उसूल काफी पहली बार सुन रहे हैं।
हयातुल कुलूब हम पहली बार सुन रहे हैं, नासिक तवारी की किताब हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारी किताबों के आप नाम और भी ले ले, हम तो सब पहली बार सुन रहे, कैसे यकीन करें। तो मेरे प्रोग्राम की खासियत यही होती है कि मैं किताबों के साथ साथ कुछ बोलते हुए चेहरे भी दिखा दूं ताकि यकीन हो जाए। साउंड चालू रहे इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं मैं सुना देता हूँ तो ये शब्बीर मीसमी साहब जो है ये वीडियो में कह रहे थे, कहते हैं, और ये नेट पर मौजूद है, अगर आप टाइप कर ले गूगल पर जाके यूट्यूब वगैरह पे मौलवी शब्बीर मीसमी और कुरान इस तरह कुछ टाइप करते तो उसके अंदर कहते हैं कि शियाओं के लिए खुशखबरी है कि जो अइम्मा ने अपने हाथों से कुरान लिखा था, ओरिजिनल कुरान, उसके 4 नुस्खे हमको दिए और इस 4 नुस्खों को हमने क्या किया है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को भेजा है ब्रिटेन में, ताकि वो इसको चेक करके बताएं कि ये उसी जमाने का कागज है, उसी जमाने की स्याही है, ताकि तस्दीक करे वो कि ये वही कुरान है। यानी अंदाज लगाइए, कुरान अल्लाह की किताब है, मुसलमानों के लिए नाजिल हुई और उसकी तस्दीक कौन करेंगे, अंग्रेज लोग करेंगे। वीडियो सुनते तो आपको बड़ी दिलचस्पी महसूस होती, क्योंकि कुछ बातें मुझे याद नहीं और क्या क्या बोला, जो याद आ रही है मैं सुना के रखता हूं। कहते हैं कि जैसे ही वहां से तस्दीक हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग और वेरीफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये वही कुरान है जो अली ने लिखा था, तो हम फिर इनकलाब ईरान के बाद, इनकलाब ईरान का इनकलाब कहते हैं कि भाई इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, इनकलाब ईरान के बाद शियाओं का जो सबसे बड़ा कारनामा है, बतौर कारनामा हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। 1400 साल के बाद हम ओरिजिनल कुरान को तलाश करके ले आए और हम बड़े फख्र के साथ उम्मत तक ये असल कुरान। सवाल ये पैदा होता है कि इस पर 2 ज़रब है कि एक तो तुम्हारी ही किताबें कहती है कि इमाम मेहदी लेकर गए तो कयामत के वक्त लेकर आएंगे, तो बीच में तुम कहां से ले आए? तो ये तो एक अकीदे का दोगलापन तुम्हारा इससे पता चल रहा है कि तुम दोनों तरफ से बातिल हो। अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त है तुम्हारे नजदीक, हमारे नजदीक तो दोनों बकवास है। तुम्हारा नजदीक अकीदा अगर दुरुस्त है, इसको तुम सही मानते हो, तुम्हारे मोतबर मुस्तनद उलमा ने लिखा है कि इमाम मेहदी के पास असली कुरान कयामत के वक्त ले आएंगे, तो फिर ये बीच में लाए ये बकवास है, ये झूठ है, फरेब है, किस्म है। और अगर ये सच्चा है तो फिर इमाम मेहदी वाला जो हम कौल और जो तुम्हारा अकीदा है वो झूठा है। तो तुम्हारे यहाँ से लेकर जितने 14 साल से गढ़ते आ रहे थे कि इमाम मेहदी लाएंगे, सब झूठे करार पाए। तो जिस फिरके के बड़े बड़े अल्लामा झूठे हो, फिरका खुद कितना बड़ा झूठा हो, तो दोनों तरफ से तुम झूठे हो। हमारा तो अकीदा यह है कि कुरान दुनिया की वाहिद वो किताब है जिसका ज़ेर और ज़बर तक नहीं बदला गया, जिसका सुकून तक, जिसका कौमत तक नहीं बदला गया। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी भी किताबें आई, पिछली भी आसमानी किताबें आई, अल्लाह ने ही वो किताबों को नाजिल किया, लेकिन हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया। सिर्फ कुरान अज़ीम है जिसके बारे में कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ महबूब हमने इस किताब को, इस जिक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं, हम इसकी हिफाजत। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान अजीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो किसकी मजाल है कि कुरान को बदल दे। हो सकता है कल आप कहें भाई इस दावा को समझ में नहीं आ रहा है, बदलना कौन सी मुश्किल बात है भाई, हम कुरान ले आए, अब उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और रब्बिल आलमीन को हम रब्बुल आलमीन कर देते तो बदल दिया। भाई आप कह रहे ज़ेर ज़बर नहीं बदल सकते, हमने बदल दिया। हम ज़ेर की जगह ज़बर लिख दें, कौन होते हो आप, कहां हाथ पकड़ सकते हो अब हमारा, हमने तो बदल दिया। फिर अल्लाह ने क्या किया, कुछ तो नहीं किया। माज़अल्लाह, अगर ये आपका तस्वुर है, किसी का तस्वुर हो जाए, मुसलमान को तो तस्वुर हो नहीं सकता। अगर कोई बेवकूफ इस तरह की हरकत करे, उसको मालूम होना चाहिए कि हिफाजत का जिम्मा जो रब फरमा रहा है, तो ये स्याही की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, ये जो है औराक की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुरान जो नफ्स कुरान है उसकी हिफाजत की बात हो रही है। और ये ऐसा रसूलुल्लाह का मोजेज़ा है जो कयामत तक बाकी रहेगा। और हिफाजत ऐसे की कि तुम औराक बदल सकते हो, स्याही बदल सकते हो, हुर्फों को तब्दील कर सकते हो, लेकिन बच्चों के सीने में जो कुरान को अल्लाह ने हिफ्ज़ फरमा दिया, उस हिफ्ज़ शुदा दिल के कुरान को जो नक्श हो गया उसको कैसे बदल सकते? उसको तुम नहीं बदल। तो कुरान अज़ीम एक महफूज किताब है, लेकिन हमारे दरमियान में मुसलमान कहलाने वालों में ऐसे भी लोग हैं जो इस कुरान को अल्लाह का कलाम और अल्लाह की असली किताब मानते हैं।
मगर ऐसे ही लोगों से जो मेल मिलाप रखते हैं इस वक्त, सुलह कुल्लियत के अगर अलम बरदार मैं कहूँ उस शख्स को जिसका नाम तारिक जमील है, आज मैं उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ कि एक जगह बड़े रो रो के कहती है, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। दर्द है उसके दिल में, इतना रोता है कि शियाओं को शर्मिंदा कर दिया, इतना रोता मगर मच गया, एक हो जाओ। बरेलियों ने देवबंदियों को कहा, देवबंदियों ने बरेली को कहा काफिर, शियाओं ने सुन्नी को कहा काफिर, सुन्नियों ने शियाओं को कहा काफिर, तो जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील बड़े दर्द के साथ एक वीडियो में कहते हैं, वीडियो मशहूर है, नेट पे बहुत छाया हुआ है, इसके लाखों व्यूअर्स है, लाखों लोगों के व्यूज लाखों में, बल्कि लाखों क्या, मेरे ख्याल से कई मिलियंस हो गए होंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा। जन्नत रब तबारक व तआला ने जिसको हिबा फरमा दी, उसने हदीस में बता दिया जन्नत में कौन जाएगा। वही जाएगा जिसका अकीदा अल्लाह और रसूल सहाबा के मुताबिक होगा, और उसी अकीदे को तर्जमानी करते हुए आला हजरत ने एक शेर में कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपके कहने से थोड़ी होगा एक हो जाओ, एक हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, क्या किसी कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी ये दिखा सकता है कि किसी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह जब आपकी उम्मत 73 फिरके हो जाए तो कोई ऐसी तदबीर बता दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा कीमिया बता दीजिए कि इस बिखरी हुई उम्मत को हम एक कर दे। चैलेंज है, कोई एक रिवायत ऐसी दिखा दो, मैं गुलामी करूंगा उसकी जिंदगी भर। किसी साहबी ने नहीं कहा। अगर खुदा की कसम फिरकों को, सब जमातों को एक करने की अगर किसमें सबसे ज्यादा सलाहियत थी तो वो सहाबा की जमात है, मगर साहबी में किसी ने नहीं कहा यार कोई ऐसा नुस्खा बताइए, बल्कि उसके बरस क्या कहा, अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जाएंगे उनसे क्या लेना देना हमारा, जो जन्नती है उसकी पहचान बताइए। क्यों या रसूलल्लाह, आपकी जबान से जो बात निकलती है वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी जबान वही में डूबी हुई जबान है, वही के कौसर से धुली हुई जबान है। जो निकल गया, पत्थर पे लिखी हुई तहरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा आपकी कही हुई बात को मिटाया नहीं जा सकता। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो अब 73 होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हुजूर जब रोका नहीं जा सकता तो हमें उन जमातों से क्या गरज जो जहन्नमी है, हमें जन्नती जमात की पहचान बताइए, ताकि वो पहचान उम्मत तक पहुंचे तो हम जहन्नमियों को छोड़कर जन्नतियों के साथ हो जाए। ये सहाबा ने तालीम, हमें ठेका नहीं दिया गया, हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई कि तारिक जमील की तरह हम सबको मिलाने बैठ गया, एक हो जाओ, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। उम्मत बन चुकी, तो कोई नया पैगंबर आया कि जो नई उम्मत बना रहा है? क्या उम्मत बन जाओ और कैसी उम्मत बन जाओ? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। गोबर और हलवा देखने में एक जैसे दिखते हैं, क्या मिला के खाओगे? एक होकर खा जाओ, मिलाकर खा जाओ। कोई कहा जनाब गोबर गोबर है, हलवा हलवा। हम गाय का दूध तो पी सकते हैं, मूत नहीं पी सकते। हम पाकीज़ा सोच रखने वाले, पाकीज़ा खाने वाले लोग। हम वो कौम है जिसके बारे में रब ने कहा हमने तायब और ताहिर चीजें तुम पर हलाल की, उसको खाओ। हम तैयब ताहिर लोग हैं, नापाक लोग नहीं है। तो पता चला कि जो बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाते हैं वो ताहिर होते हैं, पाकीज़ा लोग होते हैं, उनकी सोच और फिक्र पाकीज़ा होती है। और जो सब गू गोबर को एक करने की बात करते हैं, समझ में आ गया कि उनकी सोच कैसी होती है। वो कौम ताहिर कौम नहीं होती, नापाक और नजिस कौम होती। फैसला आप करें कि आपको नजीस होना है कि ताहिर हो। और ना ही कुरान की तालीम में तारिक जमील से मैं पूछना चाहता हूं और उसके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि तारिक जमील साहब, क्या आप कुरान की एक आयत, एक सिर्फ एक, जिस दिन एक आयत दिखा दोगे खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दोगे? आपका रदी नहीं, तकरीर ही करना छोड़ दोगे।
اور اعتراف کروں گا، ایک ویڈیو بنا کے اعتراف کروں گا، بھائی طارق جمیل صاحب نے ہمارا مطالبہ پورا کر لیا، آج سے میں تقریر کرنا چھوڑتا ہوں، طارق جمیل صاحب کو سلام کرتا ہوں، ان کو برا بولنا بند کرتا ہوں، اور آج تک جتنا ان کو میں نے برا کہا سب کے لیے میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ اور وہ صرف کیا ہے میرا چیلنج، قرآن کی ایک آیت طارق جمیل ایسی دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا ہو سب ایک ہو جاؤ، ایک آیت دکھا دو آپ قرآن میں۔ ہمیں یہ تو نہیں ملتا قرآن میں، اس کے برعکس کیا ملتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ حق و باطل کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتا، کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صلح کلیت کے لیے تعلیم یہ دی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسلام میں آئے ہو تو پوری طرح اسلام میں، کچھ یہ بھی ٹھیک کچھ وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ تو میرے بعد انشاءاللہ وہ موضوع حضرت علامہ مولانا حافظ احسان صاحب کی بنا کو دیا گیا ہے، بتائیں گے کہ کن کتابوں کی بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا، اور مسلمان کہلانے والے ہی دو گروہ میں پڑے، ایک باطل کی طرف چلے گئے، آج ایک اب بھی حق پر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حق پر رہے وہ ہم۔ لیکن بطور تمثیل صرف ایک مثال میں دے کے گزروں گا، تحذیر الناس نام کی کتاب لکھی گئی، حفظ الایمان بھی لکھی گئی، انشاءاللہ میرے بعد کے کتاب میں برائن القاطیہ لکھی گئی، اور بھی کتابیں لکھی گئی، تقویۃ الایمان لکھی گئی، فتاوی رشیدیہ لکھی گئی، ساری کتابیں یہاں موجود ہیں۔ جو حوالے دیے جائیں گے دیے جا رہے ہیں، ہر حوالہ دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم کے دیوبند کے بانی کہے جاتے ہیں، ان پہ غور کیا جائے۔ سہارنپور میں جو اس جماعت کا سب سے بڑا ادارہ مدرسہ، اس کے کیا کہے جاتے ہیں؟ بانی، جبکہ بانی ہے نہیں، قاسم ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، اس کا بانی کوئی اور تھا، باقاعدہ اس پر کتاب میں ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، میرا موضوع آج وہ ہے۔ پتہ نہیں انہیں کیا سوچی، کسی نے ان سے ایک سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اثر کہتے ہیں جو صحابی کو روایت کرے اور رسول سے منقول ہے، حدیث موقوف بھی کرتے ہیں۔ یہ 7 زمین ہے، 7 زمینوں میں 7 انبیاء ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں 7 انبیاء ہے، تو حضور کے زمانے میں 7 زمینوں میں 7 رسول ہے، آسمانوں میں 7 رسول ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے کہ کل 15 ہے۔ سیدھا سا جواب یہ تھا، اس حدیث پہ سوال کیا، محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا، اور محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہی نہیں، راویوں پہ بحث کی۔ اب اگر ان کو جناب کو اسماء اور رجال پہ نظر نہیں تھی، اگر قاسم نانوتوی صاحب کی، تو کم از کم اتنا جواب دیتے کہ بھائی یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، مرفوع بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث اگر ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن جناب وہاں پتہ نہیں کیا سوجی محقق بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 15 نبی بھی مان لیا جائے تب بھی حضور کی خاصیت میں فرق نہیں آتا۔ ہر زمین میں حضور کی طرح نبی مانے جا سکتے ہیں، آدم کے زمانے میں 15 آدم تھے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں شیش تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 15 نوح تھے، ہر زمانے میں ہر نبی آیا اس کے جیسے، اور نبی بھی ہر 7 زمین اور 7 آسمان کے طبقوں میں رہے۔ تو قاسم نانوتوی پھر یہاں بڑے علم بھگار میں بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ جو قرآن عظیم میں حضور کی خاتمت کا ذکر آیا، تو قرآن عظیم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے، حضور کے بعد اب کوئی آخری نبی نہیں آئیں گا۔ سرکار کی متواتر حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث، صحیح الاسناد حدیث، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع اس حدیث سے آقا نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 12 کا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ کہا یہ جو خاتم النبیین کے معنی ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور آخری میں آئے زمانے میں، مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں۔
کہ جس لیول کے آپ ہیں، جو مرتبہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، بس وہ مقام آپ پر ختم، وہ مرتبہ آپ پہ ختم. آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اقصی نبی ہوگا، ذلی نبی ہوگا، آپ کا نائب ہوگا، مقام و مرتبہ میں آپ کے برابر نہیں ہوگا. حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمت میں فرق نہیں ہے. معاذ اللہ. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اور یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ صریح کفری عقیدہ. بھائی جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا نا، یہ لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں، اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اس سے کہا تھا حضرت عمر سے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ابن خطاب. حضرت عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تھا تو آج کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا ولی کامل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو حضرت عمر تو اس سے بلند ہے. تو جب حضرت عمر نہ ہو سکے تو آج پیدا ہونے والا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ کتاب اصل میں لکھنے کی ضرورت کیوں کو ایسا آئی؟ قاسم نانوتوی کا ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب سوانح حیات ہے جس کا نام ہے سوانح قاسم، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ مرید اور ان کے شاگرد، انہوں نے ان کے حالات کی زندگی کو لکھی. کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی بچپن میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے. تو وہیں سے ان پہ خبط سوار ہوا کہ کچھ بڑا مقام ملنے والا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کی گود. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو جسمانی آنکھ سے پتہ نہیں انہوں نے کیسی گود دیکھ لی تھی. معاذ اللہ. پھر آگے ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے پاس آئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ان کے پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں پڑھنے، جب بھی تسبیح لیتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منو مجھ پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ مجھ پر صاحب نے کہا معاذ اللہ. صاحب نے کہا مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو رسول اللہ کو وحی کے وقت محسوس ہوتا ہے. اللہ تم سے وہی کام لیں گا جو نبی سے لیا گیا. اب چچا جان کو، قاسم چچا کو خواب سوچنے لگے آج نہیں تو کل جبریل آئیں گے. مبارک ہو تم. اور حضور کی خاتمت میں اس لیے فرق نہیں آئے گا، تم نبی ہو لیکن حضور کے برابر کے نبی نہیں ہو، چھوٹے لیول کے، چھوٹے والے حضور کے اسسٹنٹ نبی. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کا ذہن سازی کرنے کے لیے تحذیر الناس لکھ ماری. بھائی ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ دوڑ پڑے، اتنے جوتے مارے کہ سر کا بال بھی نہ بچے. تحذیر الناس لکھے کہ پہلے تھوڑا ذہن بنا دیا جائے کہ بھائی خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کہ حضور آخری نبی زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے. مگر ہوا یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ کتاب آئی اور ابھی وہ اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے کہ بازی کوئی اور مارے. اب بازی کس نے ماری؟ گرداسپور پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. اس نے دعویٰ کیا میں نبی آ گیا نبی. سارے دیوبند میں ہلچل مچ گئی. اب تو کیسا نبی ہے؟ آپ ہی کے تعلیم نے لکھا ہے کہ بھائی نبی آ سکتا ہے. آ سکتا نہیں، میں آ گیا. آ سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تو خود آ گیا. مانو مجھے اب نبی. مجھ پہ تو وحی بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہے ہیں میرے پاس. بڑے پریشانی ہوئی دیوبندیوں میں کہ بھائی بازی تو کوئی اور مار گیا. مولوی طاہر گیاوی کی میرے پاس ویڈیو ہے، آڈیو ہے، سوری معاف کرنا، ویڈیو آڈیو ہے، اور اسی کے چینل پہ ڈلی ہوئی ہے، ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، ابھی بھی بہت. طاہر گیاوی کہتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہماری جماعت کی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے بڑی تعریف کی. ان کا نام تھا عطا اللہ بخاری. نام پہ غور کرے، پورا واقعہ نام پہ گھومتا ہے. عطا اللہ بخاری ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا. وہ کھڑے ہوئے اور غلام احمد قادیانی کو للکارا مناظرہ کر، تو کیسے نبی ہے؟ غلام احمد قادیانی تیار ہو گئے، چلو مناظرہ کر لے کے میں ثابت کرتا ہوں میں نبی ہوں. بہرحال مناظرہ ہوا. مناظرے میں عطا اللہ بخاری نے کہا، یہ طاہر گیاوی کے بقول، آڈیو میرے پاس موجود ہے، میں صبح تک رکا ہوا ہوں، 2 بجے میری یہاں سے روانہ. آپ میری قیامگاہ پر آئیں، میں آپ کو آڈیو سنا دوں گا. یہاں چل نہیں رہے اسپیکر سے سنانے سے معذرت طلب.
बाद बच्चा ये आवाज नहीं आ रही। ताहिर गावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा तू नबी है इसकी दलील दे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नजर न फतावों पे नजर। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर खातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुव्वत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज, नबुव्वत होंगी, नबुव्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझे कि नबुव्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुव्वत को मनसूख समझना ये भी ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे, उम्मती। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में कयामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इब्तिदा में आप नमाज मुस्तरी। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या जरूरत थी, उसको 4 जूते लगाते तो दलील मांग। गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। तो दलील तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील देता हूँ। कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद है। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा तारिया भी कहता है फर्दुल लजीज। वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद नहीं है। अताउल्लाह बुखारी ने कहा बदबाक अरे खबीर, अबे गधे, कुरान में जो है हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे वो अहमद होंगे। वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है। तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है। मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगाया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की नहीं। अताउल्लाह बुखारी का जवाब दूंगे। और ताहिर गावी की उस बात पर पूरा मजमा कहके लगा रहा है, दाद दे रहा है, इतना दलील दे रही है। अताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए का, ओ मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूं, तो उन्होंने अताउल्लाह लगाया। और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूं कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर गावी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तो अपने जमाने का झूठा नबुव्वत का दावा करके मुसलमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम में हमारी किताब मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन से रिश्ते नाते बता दें। हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब, और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज चैनल पे देखा होगा, मेरे पास लैपटॉप पे भी मौजूद है। उस पर काफी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे।
तौबा नहीं सोची साहब, हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गए, और महमूद मदनी के दादा अशरफ अली थानवी के शादी, वो मर गए तो उनकी तारीख में पूरा एक जमीयत उनकी जमात है ना, जमीयतुल उलमा, तो जमीयत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी ज़बानें लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद तांडवी साहब जो थे वो खुदा से जमीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए, जमीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही न सके ये तो खुदा है। चलते गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा, फिर चला गया। मरने के बाद पता क्या खुदा भी हमारी किताबों में मौजूद है, नहीं कर सकते। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया, इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की, और उन तावीलात में बजाय इसके कि वो अपने बुजुर्गों से कुफ्र को उठाते और मजीद कुफ्र अपने ऊपर लाते। तो ये एक बुनियादी इख्तिलाफात है कि ये रसूलुल्लाह की नबुव्वत के कायल नहीं, एक जमात हुए जो अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान अजीम को महफूज मानने के लिए तैयार नहीं, तहरीफ शुदा करार दे रहे हैं, ओरिजिनल किताब मानने को तैयार नहीं। देवबंदियों का तबका हुआ जो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने का कायल है, और एक तीसरा इसी फिरके की एक शाख बोल ले या इनकी असल के जिससे देवबंदी निकले, मैं कंफ्यूज होता हूँ कि देवबंदी इनसे निकले या ये वो देवबंदी से निकले, वो फैसला इन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों के अकाबिर तकरीबन एक ही है। इस्माइल दहलवी को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इब्न तैमिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, इब्न कय्यम जौजिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। कई मौलवी उलमा ऐसे पुराने कदीम गुजरे जिनको दोनों मानते, दोनों की तालीमात पर अमल करते हैं। तो एक है अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, इनके भी अकीदों में क्या तजाद आता है, क्या खराबियां आती है। रसूलुल्लाह की बदतरीन गुस्ताख, ये जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा आलिम अपनी जमात का समझते हैं, वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की किताब है जिसका नाम है किताबुल वसीला, इतना सख्त हमला किया है, ये रसूलुल्लाह की हयात का कायल होता है। कहता है हुजूर विसाल फरमा गए, बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है, इस कब्र में भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, और इस पर दलाइल है हमारे पास, कुरान के भी दलाइल है, हदीस के भी दलाइल है, अहादीसें भी है हमारे पास। क्या है वो दलाइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म के साथ हयात है, और आपकी हयात हिस्सी दुनियावी हयात है, हकीकी हयात है। आपकी हयात बरज़खी नहीं बल्कि दुनियावी हयात है, और ये इख्तियार है कि आलम बरज़ख में भी तशरीफ ले जाते हैं, जन्नत में भी तशरीफ ले जाते हैं, जमीन पर सैर भी फरमाते, और करम फरमाए तो इस बज़्म में भी तशरीफ ले आते। मर्जी मुबारक है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, इसीलिए हमने कहा मोहब्बत में कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। लेकिन आपका मरकज हकीकी क्या है, आपकी कब्र मुबारक, और उसके लिए इसलिए आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब। और एक हदीस में फरमाया जिसने मेरे मौत के बाद मेरी कब्र को देखा गोया उसने मुझे जिंदगी में। तो हम इस तरह हयात को मानते हैं, लेकिन इब्न तैमिया ने कितना खतरनाक हमला किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को लेकर। हयात का इनकार ही नहीं किया, हुजूर की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की। बदबख्त किताबुल वसीला में लिखता है कि बाद झूठे सूफी, बाद झूठे सूफिया कहते हैं औलिया की जमात, ये दावे करते हैं कि हम कब्र पे गए, कब्र शक हुई, रसूल बानफ्ते नफी तशरीफ लाए, वहां का किया, गले मिले, मुसाफा हुआ, दस्तबोसी हुई। अभी मैंने दो वाकयात आपके सामने पेश किए, एक आला हज़रत का भी वाकया पेश किया कि सरकार आला हज़रत को भी ज़ियारत हुई, अब्दुर्रहमान इब्न जामी, मां अब्दुर्रहमान इब्न जामी का भी वाकया पेश किया। मुतअद्दिद हमारे उलमा और सूफिया के अक़वा जो है ऐसे वाकयात है कि रसूल ने बानफ्ते नफी अपनी ज़ियारत से उनको मुशर्रफ फरमाया।
सबका इनकार करते अपने तैमिया कहता है ये झूठे सूफी है जो दावा करते हैं कि हुजूर की कब्र शक हुई, फटी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, जाहिर से मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा किया, वो हुजूर नहीं होते। जो कब्र फटती है, जो बाहर निकलता है, वो शैतान होता है माज़अल्लाह, और वो कब्र फाड़ के बाहर निकल के कहता है मैं नबी। यानी इनकी बदबख्ती देखिए आप इसमें तैमिया। तो हुजूर की कब्र शक हो, सरकार बाहर तशरीफ लाए, तो हुजूर को इस पर इख्तियार तो नहीं मानता, मगर इब्लीस को इतना बाख्तियार मानता है कि पहले कब्र में घुसता है। कहां से घुसता है वो कुछ घुसता नहीं है, शगाफ भी नहीं, कोई सुराग भी नहीं, घुस गया बस कहीं से। और जाहिद ने कहा या रसूलल्लाह आपका दीदार का मुतमन्नी हूं, तमन्ना है मुझे कि आपका दीदार करूं। कब्र फटी, शैतान बाहर। शैतान को इख्तियार है कि कब्र में जाए, फाड़ के बाहर आ जाए, अपने आप को नबी भी बताए और उम्मती को गुमराह हो जाए, मगर माज़अल्लाह कहता रसूल को तो हुजूर को मत। इब्न तैमिया के इसी अकीदे, बातिल अकीदे को मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नबी ने अपनी किताब तौहीद में दर्ज, और उसी के चरबे को उठा के उसी की किताब तौहीद की तलखीस तक़वतुल ईमान के नाम से मौलवी इस्माइल दहलवी ने की, और उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। हालांकि सही हदीस है, सही हदीस है। अलबानी जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा, उसने तक मुहद्दिसीन की यहां से वहां तक जब देखा राय को कि हर मुहद्दिस सही करार दे रहा, तो मजबूरन अल्लाह जाने कितना दिल पे पत्थर रख के उसको भी लिखना पड़ा हूँ अपने सिलसिला तो सही किताब पे, ये हदीस सही है और बहुत सारा शुरू। और हदीस क्या है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। आका कहते हैं अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है, रिस्क दिया। और यही आला का हमारे कमाल है, अकीदे हदीस को, अकीदे कुरान को, अकीदे सहाबा को, अकीदे रसूल को अशारों में दो जुमलों में बन जमा कर देते। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। तो बहरहाल बहुत सारे तजादात है, बहुत सारे इख्तिलाफात है, कहाँ तक मैं बयान। कहीं लिखा गया कि रसूलुल्लाह उर्दू ज़बान हमारे मदरसे देवबंद में सीखी, बराहिनुल कातिया किताब में। यहां तक लिखा गया कि हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान को है, शैतान का इल्म नस से साबित, हुजूर का इल्म नस से कतई से साबित। तो ये वो बुनियादें हैं जिन गुस्ताखियों की बुनियाद पर हमारे उलमा ने इनको मुसलमान समझा। आज मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और अब मैं आपसे फैसला चाहता हूं, बस ये खत्म कर रहा हूं, मैं आपसे फैसला चाहता हूं। जो कुरान को असल न समझे, क्या वो आपकी निगाह में मुसलमान है? जो हमारे नबी को आखिरी नबी ना समझे, क्या वो मुसलमान है? क्या जो हमारे नबी की कब्र के बारे में अकीदा रखे कि उस कब्र को फाड़ के शैतान निकलता है? तो इख्तिलाफ कुफ्र ईमान का है, प्रॉपर्टी का इख्तिलाफ नहीं, बिजनेस का इख्तिलाफ नहीं, लेन देन का इख्तिलाफ नहीं, रिश्तेदारी में इख्तिलाफ नहीं। जो सलामत है तो जन्नत में जाना है, रसूल की बारगाह में रसोई है, खुशनुदी है, अल्लाह की खुशनुदी है, कामयाबी में ही बिगाड़ है। याद रख लीजिए, आप कितनी नमाजें पढ़ ले, कोई नमाज पढ़ ले, इब्लीस से बड़े आप आबिद नहीं होते। उलमा ने लिखा कि 90 लाख, बाद में 90 करोड़ तक लिखा है, 90 लाख को तो ज्यादा इत्तेफाक है, 90 लाख साल उसने अल्लाह मगर मरदूद हो गया, शैतान लाइन हो गया, धुतकारा हो गया, खबीस हो गया। क्यों? नबी की ताज़ीम। किस नबी की ताज़ीम नहीं की? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की। तो जब आदम की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पर 90 लाख साल की इबादत तबाह हो जाती है, तो जो रसूलुल्लाह की ताज़ीम ना करे तो ये 60 साल की, ये 70 साल की इबादत तो क्या नाम है? असल हकीकी ईमान है रसूलुल्लाह की। और जब हुजूर की अगर सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर का फिर कोई भी गुस्ताख हो, हम उससे फिर सुलूक नहीं कर सकते, मजहबी सुलूक नहीं रख सकते, दीनी मामलात हम उससे नहीं करते, न उसकी हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे, न उसके पीछे नमाज। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया,
जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सियाह सित्ता में आती है। कहा गया या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला मर गया, आप नमाज जनाजा पढ़ा। सरकार ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊं। साहबा मुताज्जिब हुए, या रसूलल्लाह आज तक आपने किसी जनाजे के बारे में ये नहीं कहा, जो भी जनाजा लाया गया आपने नमाज पढ़ाई। सरकार आप पहली बार, ये पहला मौका आया है हमारी निगाहों के सामने, आप फरमा रहे मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इसकी वजह इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। तो हदीस से पता चला जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो उस्मान गनी से मोहब्बत न करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ रखे, उसकी नमाज जनाजा आका नहीं पढ़ते। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा हम कैसे पढ़ें? अगर हम चंद सिक्कों की खातिर इस तरह कर रहे हैं तो खुदा की कसम फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही। हमने चंद सिक्कों के एवज़ अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें सिर्फ जहन्नम का तौक पहनाया जाएगा और कहा जाएगा जो तूने हासिल करना चाहता दुनिया में। अब या तो आप गैरों की बदअकीदों की नमाज जनाजा पढ़ाते रहिए और दुनिया हासिल करते रहिए और आखिरत का खसारा उठाइए, या ये कि यहाँ सख्त हो जाइए, यहाँ जो है मुतसल्लिफ सुन्नी बन जाइए, मजबूत सुन्नी बन जाइए और नबी की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाप बदअकीदा हो जाए तो वो हमारा नहीं, बेटा बदअकीदा हो जाए तो हमारा नहीं। इसलिए कि जितने रिश्ते हैं ईमान की बुनियाद पर है, ईमान है तो सारे रिश्ते कायम है, और ईमान नहीं तो कोई रिश्ता मौजूद नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आका की हदीस है, सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने अजीज व अकारिब से ज्यादा, वन्नास अजमईन दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो बाप से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए, माँ से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए। पहले मोहब्बत रसूल है, बाद में बाप। पहले मोहब्बत रसूल है, फिर माँ है। मोहब्बत रसूल है तो माँ का रिश्ता भी बरकरार है, मोहब्बत रसूल है तो बाप का रिश्ता भी बरकरार है। और खुदा ना खास्ता यहाँ पर जरा सी भी लचक है तो फिर बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, माँ। और सहाबा इकराम ने जंग के बद्र में ये दिखा दिया। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने अपने बाप जर्रा को ओहद में कत्ल किया, सगे बाप को कत्ल किया। हजरत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, मामू कुफ्र की हालत में था। हजरत अली ने अपने एक मामू को कत्ल किया। और जिगर सहाबा जिनकी तारीख में वाक़यात आते, उन्होंने अपने अजीज व अकारिब को अपने हाथों से कत्ल किया। पूछने वालों ने पूछा सहाबा की जमात ये कैसा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम ले आए हो कि बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? तो सहाबा ने कहा हमने रसूल से मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार। यही असल रिश्ता है। कब्र में बाप नहीं आएंगे, रसूल का अमल। कब्र में माँ नहीं आएंगी, आखिरत में शफात करने माँ नहीं आएंगी, बल्कि यहां तक होगा कि हर कोई नफ्सी नफ्सी कहेगा। बेटा माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी जान एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी कम पड़ गई है। मुझसे कहा गया है कि अगर तू किसी से एक नेकी ले आ तो तेरे नाम अमाल में नेकी का पल्ला वजनी हो जाए, तुझे बख्श दिया जाए। ऐ माँ तू मुझे दूध पिलाती थी, ऐ मेरी माँ तू रातों में बिस्तर अगर गीला हो जाए तो खुद गीले में सोकर मुझे सूखे पे सुलाती थी, मेरी एक हल्की चोट पे तू तड़प जाती थी। ऐ माँ तू मुझ पर शफीक थी, मेहरबान थी। आज मैं तेरा बेटा एक नेकी के लिए तरस रहा हूँ, अपनी नेकी में से सिर्फ एक नेकी दे दे। माँ कहेगी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, बेटा आज तो मुझे अपनी पड़ी। माँ तो छोड़ो, उस वक्त हदीस में आता है कि पैगंबर के पास जब उम्मतें जाएंगी, अय आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात है, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला, जाओ किसी और के पास जाओ, आज तो मुझे अपनी फिक्र। कौम हजरत नूह के पास जाएंगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गई। हजरत शीर, हजरत इलियास, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 कमोबेश सारे अंबिया का फेरा करके उम्मत हुजूर की हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगी। ऐ ईसा मसीह आप मसीह है, आपने लोगों के दर्द का मदावा किया है, लोगों के दर्द तकलीफों को दूर किया है, आपने तो बीमारों को शिफा दी, आज हम तकलीफ में हैं, अजाब में गिरफ्तार है, आप कम से कम हमारी शफात कर दीजिए। हजरत ईसा कहेंगे नफ्सी नफ्सी आज मुझे पड़ी हुई है अपनी, जाओ इज़हबू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। और जब ये उम्मत रसूल की बारगाह में जाएंगी, आका कहेंगे अना लहा
लहा, अना लहा, मैं ही इस काम के लिए हूं, मैं ही इस काम के लिए। तो जो जात कयामत में आना लहा का मुद्दा सुना के अपनी तरफ बुला रही है, आज हम उस जात के गुस्ताखों से दोस्ती करने को पसंद, और फिर हम समझते हैं मुसलमान हैं। तो आज सबसे बड़ा मर्द सुलह कुल्लियत है, और यही वो सबब है सुलह कुल्लियत, ये भी ठीक वो भी ठीक। अल्लाह ताला ऐसा नाराज हुआ हमसे, ऐसा नाराज हुआ कि वो कौम जिनको न खाने का सलीका है, न बात करने का सलीका है, मुंह खोले तो झूठ बोले, खाएं तो नापाक चीज खाएं, कोई वकार नहीं, कोई बेस नहीं। क्या बोलूं यार, आजकल सियासी हालत में बोलना भी कुछ बात, इशारे कर रहा हूं मैं, आप इशारा करना। वो जो कभी नहाते नहीं थे, हिमालय की चोटी पर गंदे रहने वाली कौम, जिनका कोई तकद्दुस नहीं, न जिस चीजें जिनकी ग़िज़ाएं बनी हुई हो, आज वो कौम हम पर राज कर, वजह हमारी बदनामी। खुदा के वास्ते अपने आप को मजबूत करो। किसी शायर ने कहा कि वो क्या शेर है, ये सरासर संग हो जाए या मोम हो जाए, पहला मिसरा क्या है, दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो, दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम, इधर भी ठीक उधर भी ठीक नहीं। और इसकी मिसाल बहुत सख्त थी अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोगले की मिसाल, जो इधर भी ठीक उधर भी ठीक, सही मुस्लिम की हदीस है, उसकी मिसाल उस बकरी की मानद है कि बकरों के इस रेवड़ में दी जाती है, कि बकरों के उस रेवड़ में दी जाती है, और जब बच्चा लाती है, हामला होती है, तो खुद उसको ही पता नहीं होता कि हमल कहां। ये इस तरह की मिसाल बीच के आदमी, बीच का आदमी ठीक नहीं, मजबूती अख्तियार कीजिए, जान पर आ जाए जान दे दीजिए, मगर अपने अकीदे को मत छोड़िए। अकीदा ही असल है। जिंदगी कितने दिन की है यार, अगर हमने इस जिंदगी में दोगलापना करके, खुलाकुलियत इख्तियार करके, कुछ दौलत कमा ली, कुछ लोगों को राजी भी करके, कितने दिन, 60 साल 70 साल 75 साल, बहुत बहुत तीर मार लिया, 60 65 से ऊपर आदमी जा नहीं रहा, कि कारत चला, बहुत तीर मार दिया, 100 साल। उसके बाद फिर वही अल्लाह की बारगाह है, फिर वही अज़ाब है, फिर वही सवाबात है, फिर वही जवाब, क्या जवाब, क्या पूछोगे। और एक गलत फहमी मैं दूर कर दूं, अक्सर हमारी कौम के लोग तकरीरों को सुनते समझते, मगर फिर शैतान क्या से डालता है यार, ठीक है, आज मौलाना साहब ने मजबूत होने के लिए कहा, आज से मैं पुख्ता अहद करता हूँ कि बदअकीदों से दूर रहूंगा, उनसे बरात का इजहार करूंगा, उनके मजहबी और दीनी मामला में शरीक नहीं होऊंगा, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, अपनी नमाज की हिफाजत करूंगा। मगर यार मैं देखता हूँ मेरे बस्ती के फुला मौलाना साहब को उसकी नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनका जनाजा भी पढ़ रहे हैं, उनके जिक्र भी पढ़ रहे हैं। ये वो चीज है, वो शैतान का वसवसा है जो हमारे कौम को समझने के बावजूद भी फिसला देता है। याद रखिए, मौलवी अपना जवाब देगा आपको, आपको अपना जवाब। कयामत में ये कहकर, खुदा की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, ये कहकर कोई नहीं बचेगा परवरदिगार फुला ऐसा करता था इसलिए मैं नहीं, हर शख्स को अपना हिसाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है, मेरे वालिद को अपना हिसाब देना है, मेरे वालिद से मेरे बारे में सवाल नहीं होगा, मुझसे मेरे वालिद के बारे में। तो आप अपने मुहासबा कीजिए और अपने हिसाब की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आपकी फजलों को कबूल फरमाए, और जो भी मुख्तसर वक्त में कहा बताया अमल फरमाए, कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सत्य में माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो।